workshop on robotics and Arduino presented by Jugaad Club. So let me first introduce myself. My name is Naman Gasta, and I am the president of Jugaad Club for this tenure. And before starting the workshop, I would like to give a brief information about our club. We are the here we all share the same enthusiasm, new road and new projects and new designs, and we also teach others to do that. We conduct several workshops and regular classes for the students who want to learn. सो बेसिकली अगर आपके पास कोई मन में आपके प्रोजेक्ट है कि मुझे ये बनाना है या फिर मुझे ये सीखना है, सो वी डू दैट। हम आपको सिखाते हैं फ्रॉम बेसिक्स, लाइक फ्रॉम द कंपोनेंट्स दैट यू विल बी नीडिंग एंड द कोडिंग दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न। हम वो आपको सिखाते हैं। एंड सो विद दैट, so now let me introduce you to the speakers of today's session. The first up is Tarun Jain. He will be handling the theoretical and coding part of this workshop, and Shubham Ratra, who is also the vice president of Jugaad Club. He will be mentoring you with the hands-on project that you guys will be making on Tinkercad. So I hope सबने Tinkercad पे बना लिया होगा अपना account. And lastly, we would love to make this workshop interactive. So अगर आपको कोई भी queries है, कोई भी question है, तो please chat में लिखिए and we'll surely respond to it. And I hope you enjoy this session and learn from it. So Tarun, you can take over. Okay, thanks, Tarun? Naman. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. आवाज आ रही है. So welcome everyone. Myself Tarun Jain, and now we'll start with our first topic. What is robot and robotics? It's a very impressive term. Many of us heard this term earlier. So let's try to understand this term in very basic term. So what is robot? Any machine which is able to do any sort of work which will help human in terms of resources, time or efficiency, or in simply we can say the machine which can help to reduce human efforts and do work which will help human without human interaction can be termed as robot. The biggest advantage of robot or machine can be like uh, we can they can do multiple tasks or a single task for a multiple times without any fatigueness. तो हम कह सकते हैं अगर कोई भी मशीन है वो काम अगर बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना यूजर के अगर खुद से काम कर रही है और हमारी हेल्प हो पा रही है तो उसे हम एक रोबोट कह सकते हैं. जरूरी नहीं वो ह्यूमन की तरह दिखे, ह्यूमनॉइड ही हो, कोई भी मशीन हो सकती है वो. एंड नाउ व्हाट इज रोबोटिक्स? In layman terms, we can say robotics is a simple word, is a simple term which means study of robot or making of robots, or basically we can say exploring about robot with the help of science and technology. Okay, so let's go forward. Okay, now here comes the fundamental block of robotics. We'll try to understand this structure in like layman language. This system consists of three main components: sensor, controller, and actuator. Suppose we'll start with an example. Suppose we have to do a single task. We have to pick a ball from a ground. Suppose अगर मुझे कोई बॉल पिक करनी है ग्राउंड से तो मैं क्या करूंगा? मैं 3 स्टेप्स लूंगा. पहले मैं अपनी आईज के थ्रू सेंस करूंगा कि वो बॉल कहां पर है ग्राउंड पर. काइंड ऑफ उसे कोऑर्डिनेट्स फेच करूंगा कि वो इस जगह पड़ी है. तो उस कोऑर्डिनेट्स को फिर मैं एज अ इनपुट अपने ब्रेन को दूंगा. तो ब्रेन क्या करेगा मेरा? उस कोऑर्डिनेट्स को पहले तो एज ए इनपुट यूज करेगा, कैलकुलेट करेगा. उसके बाद हमारे हैंड्स को कमांड देगा कि अब तुम्हें बैंड होकर यहाँ से बॉल पिक करनी है. बेसिकली हमने 3 चीजों को यूज किया: सेंसर, कंट्रोलर, एक्चुएटर. हमारा सेंसर क्या हुआ? हमारी आईज, जिसने सेंस किया कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी जो हमें चाहिए वो कहाँ पे है. कंट्रोलर ने क्या किया? डिसीजन लिया कि उसको कैसे पिक करना है. उसका एक्चुएटर को कमांड दिया कि तुम्हें क्या काम करना है. We'll study about this structure in our upcoming slides in detail. Okay. So अभी हमें जैसे पढ़ा कंट्रोलर, ये कंट्रोलर, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. कंट्रोलर क्या है? कंट्रोलर हमारे सिस्टम का, हमारे रोबोट का, हमारी मशीन का ब्रेन होता है जो कि पूरे के पूरे डिसीजन लेगा. डिसीजन वो ऑब्वियसली जो हम उसे बताएंगे उसके बेस पर लेगा, पर इंडिपेंडेंट लेगा. उसे अगर हमने को बता दिया कि
ये इनपुट्स आएंगे, इसको हमने ऐसे मैनेज करना है। उसके बाद हमें उसे फ्यूचर में दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली काम करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैलकुलेटर बना रहे हैं तो हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, तो हम उसे बोलेंगे कि भाई वन वन और वन दो इनपुट है और हमारे को इसकी आउटपुट चाहिए ऐड कर कर, तो उसे हमें टू दे देगा। और इसमें जो कैलकुलेशन वन प्लस वन करना है वो कंट्रोलर अपने आप करेगा। सेंसर काम करेगा, वन प्लस वन और वन इनपुट देगा और एक्चुएटर हमें आउटपुट दिखा देगा टू। ओके, सो हम इस वर्कशॉप में कौन से कंट्रोलर का यूज करने वाले हैं? कंट्रोलर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट जो हम यूज करने वाले हैं आर्डिनो। आर्डिनो एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली और बहुत बेसिक कंट्रोलर है, जो कि जो न्यू कमर्स होते हैं, जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे थे लर्निंग के लिए, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अब इसे हम जैसे पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है आर्डिनो एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म यूज फॉर बिल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स। इसमें एक हाईलाइटिंग टर्म है ये ओपन सोर्स। तो काफी ने पहले सुना होगा, मैनी ऑफ यू हैव हर्ड ओपन सोर्स अर्लियर। एक बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव टर्म है। ओपन सोर्स क्या होता है? बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्रीली अवेलेबल है। इनफैक्ट सॉफ्टवेयर ही नहीं, जिसका जो सोर्स कोड है वो भी फ्रीली अवेलेबल होता है सबको। मतलब अगर कोई भी कम्युनिटी में कोई भी पर्सन अगर चाहे तो आर्डिनो में कंट्रीब्यूट कर सकता है, कि उसे लगता है कि मान लो आर्डिनो का स्ट्रक्चर, उसका जो आर्किटेक्चर है, जो उसकी जो प्रोग्रामिंग है, उसमें किस तरह से इंप्रूवमेंट की जा सकती है, जो उसमें कोई भी चेंजेस कर सकता है, तो दे आर वेलकम, एनीवन कैन कंट्रीब्यूट। बेसिकली जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर होते हैं वो कम्युनिटी ड्रिवन होते हैं, कम्युनिटी मैनेज करती है उसे, और इम्प्रूवमेंट्स वगैरह कोई भी उसमें ओपनली कर सकता है। अब हम आर्डिनो पे आते हैं। आर्डिनो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही है। ये जो है बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अच्छा, ओपन सोर्स बताते हैं, जी सॉफ्ट आने वाला, उसमें भी आर्डिनो एज एक ऑर्गेनाइजेशन आती है, तो अगर किसी को इंटरेस्ट आए तो वहां भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। काफी मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स। ओके, तो हम आर्डिनो के बारे में देखते हैं। आर्डिनो जो हमारे बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम उसको। एक हमारा सॉफ्टवेयर पार्ट उसका, एक हमारा हार्डवेयर। हार्डवेयर बोर्ड कैसा दिखता है वो हम इधर राइट बॉटम में दिख सकते हैं, कुछ कुछ इमेज देख आइडिया लग पा रहा होगा। ये हमारा हार्डवेयर बोर्ड है। अब हमें जो भी काम करना है वो तो हमारा कंट्रोलर करेगा, जो हार्डवेयर करेगा। लेकिन अब हमने जब डिसाइड किया, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, एग्जांपल लिया था कैलकुलेटर का, तो हमें एडिशन करना है। सपोज करो हम चाहते हैं कि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो उसमें हमने बता दिया एडिशन ऑफ टू नंबर्स करने हैं। तो हम उसे बोलेंगे, कंट्रोलर को कमांड देंगे कि ऐड करो दो नंबर को और हमें आउटपुट दो। वो ऐड तो कर देगा, लेकिन ऐड का मतलब है तो बताना पड़ेगा ना किसी न किसी को। कंट्रोलर खुद से कैसे जज करेगा उस ऐड का क्या मतलब है? तो उसको एक बार उसका स्ट्रक्चर से डिफाइन करने के लिए टर्म्स को, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, टेक आईडी चाहिए होती है, जिसे हम आर्डिनो आईडी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो उसमें हम क्या हम एज अ प्रोग्रामर उसमें प्रोग्राम करेंगे, बेसिक्स बताएंगे कंट्रोलर को कि हम उसमें क्या करने वाले, हम क्या कैसे, कौन सा सेंसर यूज कर रहे हैं, कौन सा एक्चुएटर यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, कौन सी पिन यूज कर रहे हैं, हम सब कुछ एक बार सेटअप कर देंगे, लॉजिक से बता देंगे। उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली उस पर काम कर सकता है, हमें उसे हर बार बताने की जरूरत नहीं होती। एक बार अपलोड कर देंगे कोड, उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा। A brief history. Some of you may be interested about Arduino's history. तो जो Arduino है वो ओरिजिनेट हुआ है इटली के इरीविया शहर में 2005, जो कि जिसमें कि मसीमो बांजी का बहुत बड़ा हाथ था। मतलब एज अ टीम ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ, लेकिन जो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन किया था मसीमो बांजी ने किया था 2005 में। इसका बनाने का मेन एम ही ये था, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, जो लर्नर्स होते हैं उनके लिए, जो उस टाइम कंट्रोल होते थे काफी कॉस्टली होते थे और इतना फ्रेंडली नहीं होते थे। तो इसको बनाने का मेन एम ही ये था कि जो बच्चे मतलब जो भी स्टार्ट कर रहे हैं लर्न करना, जो उसको जिन्हें बिल्कुल बेसिक्स नहीं पता, तो उनके लिए कॉस्ट फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली कंट्रोलर बनाया जाए लर्निंग पर्पज के लिए। तो उसके बाद ये आर्डिनो आया, इसलिए इसको ओपन सोर्स में रख दिया कि कोई भी बाद में से कंट्रीब्यूट कर सकता है। कम्युनिटी में कोई भी से चाहे तो आगे मतलब इवेल्युएट कर सकता है। हमारे पास बहुत टाइप के आर्डिनो बोर्ड होते हैं, ऊनो, मेगा, नैनो। सबकी बेसिक फंक्शनिंग सेम है, सबका काम तो एक ही है, लेकिन सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब जैसे बात करें मेगा की, तो मेगा में क्या है, अब कोई सर्किट बना रहे हैं हम, जैसे कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें अच्छी खासी हमें पिन चाहिए, अच्छे खासी प्रोसेसिंग चाहिए, तो हम उसे मेगा यूज करेंगे। अगर हमें कोई स्पेस मतलब हम बहुत छोटा ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हमें काम तो कंट्रोलर का चाहिए पर स्पेस हमारे पास बहुत कम है, तो हम उसका इसमें नैनो और मिनी यूज कर सकते हैं, बेडबोर्ड फ्रेंडली होते हैं काफी। और लिली लिली अगर हम कोई मान लो यूजर, जिसमें मतलब यूजर पिक करने वाला, उसको यूजर क्या कॉन्स्टेंट लेगी, इसमें भी कोई वॉच या फिर कोई वियरेबल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो उसके इसमें ले लिया सकता है। इसमें मल्टीपल एलईडीज होती हैं, इसकी पिन डाउन साइड्स होती हैं और बहुत लाइट वेट होता है।
ऐसे हर किसी के अपने अपने होते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आर्डिनो ऊनो पर। हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो अब आ गया आर्डिनो ऊनो और इसके कंपोनेंट्स। तो हमने इसके दो पार्ट्स पढ़े थे ना हमने अभी, एक होता है उसका बोर्ड और एक होता है उसका आईडी। तो फिलहाल उसका मतलब पहला पार्ट पढ़ रहे हैं जो हमारा हार्डवेयर वाला पार्ट है, जो कि इसका जो हमें दिख रहा है आर्डिनो ऊनो बोर्ड। तो इसमें देखिए इसमें काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीजों फोकस करेंगे जो हमारे को अभी नीडेड है, जो बेसिकली हमें सबको पता होनी चाहिए बहुत बेसिक टर्म्स में। तो ये दिख रहा है, ये चिप है, ये है एक्मेगा 328P। ये बेसिकली पूरी प्रोसेसिंग कंट्रोलर के अंदर ये करेगी, इसमें सारा काम होगा। लेकिन अब इसको हमें बाकी चीजें कनेक्ट करने के लिए, इनपुट आउटपुट देने के लिए हमने ये बाकी सारी पिंस बनाई हुई है। तो हमारी प्रोसेसिंग तो ये करेगी, इसको इनपुट देना और इससे आउटपुट लेना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, हमने ये पिंस है ये यूज करेंगे इसको इनपुट देने के लिए भी और इससे आउटपुट लेने के लिए भी। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप की पिन होती है बेसिकली देखा जाए तो, एनालॉग, डिजिटल और पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम होती है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो एनालॉग पिंस कौन सी है इसमें, ये रही A0 से A5 तक, ये हमारी 6 एनालॉग पिंस। जब भी हमें क्या है, जब भी हमें कोई एनालॉग सिग्नल चाहिए, एनालॉग सिग्नल से हम डील कर रहे हैं, मतलब जैसे मान लो तुम एक टेम्परेचर सेंसर के साथ काम कर रहे हो, तो तुम्हें टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली चाहिए। अगर तुम एक ऑब्स्टेकल डिटेक्टिंग रोबोट टाइप बना रहे हो, तुम्हें ऑब्स्टेकल देखना सामने आ रहा है या नहीं आ रहा, तुम्हें कॉन्टिन्यूसली चेक करना है ना उस चीज को, ऑब्स्टेकल आगे आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिस्टेंस में सर्वो घुमा रहे हो तुम, किसी भी जहाँ पे हमें एनालॉग वैल्यूज का डील करना है, तो वहां पे हम एनालॉग पिन यूज करेंगे। और जहाँ पे हमें खाली 0 और 1 में डील करना है, डिजिटल सिग्नल में डील करना है, जैसे एलईडी है, तुम्हें जलानी है बंद करनी है, तो उसमें खाली या हाई या तो लो, दो ही वैल्यूज होंगी। तो हम उस केस में अपनी ये 0 से लेकर 13 तक डिजिटल पिन यूज कर सकते हैं। और ये टिल्डे का साइन दिख रहा है, ये टिल्डे का साइन मतलब होता है पीडब्ल्यूएम पिन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ओके, सो आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आता है ये एक एलईडी, ऑन ऑफ एलईडी, पावर एलईडी है। जब भी हमारा आर्डिनो पावर से कनेक्टेड होगा, इसको पावर मिल रही है सही से, तो एलईडी ग्लो करेगी। तो अगर ये जब भी हम इसे पावर देंगे, हमें चेक करना है कि हमारा कंट्रोलर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, तो हम इस पावर एलईडी से जज कर सकते हैं इसे। उसके बाद आता है हमारा पावर सोर्स। अब हमें कंट्रोलर को पावर भी देनी है ना, ताकि काम कर पाए। तो हम कंट्रोलर को, आर्डिनो को 3 वे से पावर दे सकते हैं। एक हमारा यूएसबी, एक हमारा ये पावर जेट, और एक हमारा हो गया वीन। 3 में से किसी भी फॉर्मेट से दे सकते हैं। पर हम मोस्टली अगर हमें लैपटॉप से कोड अपलोड वगैरह करना है, लैपटॉप से पावर सप्लाई देनी है, तो हम यूएसबी यूज करते हैं। अगर हमारे पास एसी सप्लाई है, हमें अलग से एडिशनल पावर सप्लाई देनी है, तो हम पावर जेट यूज कर सकते हैं या फिर वीन भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारा लास्ट ये है रीसेट स्विच। रीसेट स्विच का क्या मतलब है, मान लो तुमने कोड अपलोड कर दिया इसके अंदर, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोड रन हो रहा है, पर तुम किसी पॉइंट में चाहते हो कि मेरा कोड वापस शुरू से फर्स्ट लाइन से रन शुरू, फिर वो रन होता है मतलब 20वीं लाइन पे आ गया, तुम चाहते हो नहीं मेरा कोड वापस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट लाइन रन शुरू हो जाए, तो क्या हम रीसेट स्विच यूज करेंगे। रीसेट स्विच भी यहाँ पे भी लगा हुआ है, एक रीसेट पिन यहाँ पे है। तो हम किसी भी पिन के थ्रू, किसी भी फॉर्मेट से हम अगर रीसेट देंगे, तो हमारा कोड स्टार्टिंग से रन शुरू हो जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, जो हम इसमें अपलोड करेंगे, जो कि इसके बारे में आगे पढ़ेंगे आईडी से अपलोड कैसे करना होता है। उसके बाद आता है ये टीएक्स आरएक्स पिन, ये होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन पिन। टीएक्स मतलब ट्रांसमिटिंग और आरएक्स मतलब रिसीविंग। जब भी हम सीरियल ट्रांसमिट कर रहे होंगे, तो हम टीएक्स पिन यूज करेंगे, और रिसीव करते टाइम हम आरएक्स पिन का। सिमिलरली यहाँ पे टीएक्स और आरएक्स एलईडीज है। जब भी हमारा डाटा सीरियली ट्रांसफर हो रहा होगा या फिर रिसीव हो रहा होगा, तो ये एलईडीज ब्लिंक करेंगी। टीएक्स मतलब ट्रांसमिटिंग के टाइम पे एलईडी ब्लिंक करेगी, और एक्स के टाइम पे ये वाली एलईडी ब्लिंक करेगी। और इसके अंदर हाँ, एक इसके अंदर एलईडी होती है, इनबिल्ट एलईडी होती है, हम कहते हैं जो पिन नंबर 13 से कनेक्टेड है। अब मान लो किसी पर्पस में मेरे पास कंट्रोलर है, ले लिया मैंने, बाय कर लिया। अब मुझे क्या चेक करना है कि ढंग से सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक तो पावर एलईडी चेक कर सकते हैं, दूसरा हम टेस्टिंग के लिए 13 इनबिल्ट एलईडी यूज कर सकते हैं। इसमें खाली कोड अपलोड करेंगे और चेक कर लेंगे कि एलईडी ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही। ओके, तो हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, आर्डिनो आईडी। जैसे अभी हमने हार्डवेयर के पढ़ा, सेकंड कंपोनेंट को होता है सॉफ्टवेयर वाला, सॉफ्टवेयर में आर्डिनो आईडी के बारे में। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसे डाउनलोड कैसे करना है। तो ये लिंक है, तो मैं चैट में भी मिल जाएगा अभी। तो इसको हम यहाँ पर डालेंगे। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? हाँ जी, यस, हाँ जी। तो हम सॉफ्टवेयर में जाएंगे।
डाउनलोड्स। डाउनलोड्स के बाद जो भी तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मे बी विंडोज है या लिनक्स है या मैक ओएस है, तुम उस पर कर सकते हो। मेरा लिनक्स है 64 बिट्स, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद जस्ट डाउनलोड, एंड देख सकते हो मेरा डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ऐसे ही तुम डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद तुम्हारी आईडी कुछ इस तरह की दिखेगी। मैं तुम्हें खोल के दिखा देता हूँ एक बारी, एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ जी। हाँ, तो हमारी आईडी का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें हम देख सकते हैं हमारा ये 2 ब्लॉक्स बने हुए हैं और बाकी ऊपर कुछ बटन्स आ रहे हैं। इसका हम बेसिक ओवरव्यू देख लेते हैं। तो ये वाला पहला बटन जो है, इसका मतलब होता है वेरीफाई, मतलब कंपाइल। जो भी हमने कोड लिखा है उसका चेक करेगा सिंटेक्स के थ्रू सही है या नहीं है। मतलब सिंटेक्स सही है, कोड कंपाइल करेगा कि जो हमने लिखा है उसमें सिंटेक्स एरर तो नहीं है। उसके बाद ये अपलोड वाला, अब हमने कोड लिख लिया तो उसको हमने अपलोड भी करना है आर्डिनो के अंदर। तो हम कोड लिखने के बाद जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड कर देगा। उसके बाद आता है ये न्यू। अगर हमें न्यू टैब खोलना है, न्यू फाइल खोलनी है, तो ओपन से हम अपना पुराना प्रोजेक्ट खोल सकते हैं और सेव से हम फाइल सेव कर सकते हैं हमें जो भी करनी है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नीचे सेक्शन दिख रहा होगा ये। इसमें क्या है, ये अभी तो हमने अपलोड करने की कोशिश करी, कंट्रोल कनेक्टेड नहीं है इसलिए एरर दिखा रहा है। तो बेसिकली क्या है, जब भी हमें कोड करा, मान लो कंपाइल करा, वो सिंटेक्स एरर आ गया, तो क्या है, जैसे मान लो मैंने की लिख दिया रैंडमली, जिसमें आ गया एरर कंपाइलिंग के वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। अगर मान लो हमारे कोड में कोई भी दिक्कत है, मे बी सिंटेक्स एरर हुआ या मे बी अपलोड करते टाइम कोई भी टेक्निकल ग्लिच अगर आता है या कोई भी टेक्निकल एरर अगर आता है, तो हम उसको यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसे कंपाइल करूंगा अब, तो अभी दिखा रहा है डन कंपाइलिंग, मतलब कोई एरर नहीं है, मतलब कंपाइल ठीक से हो गया, कोई एरर नहीं है इसके अंदर। अगर कोई एरर, जैसे मान लो मैं रैंडम डाल देता हूँ कुछ, तो एरर दे देखो, नीचे एरर मैसेज भी आ जाएगा कि क्या एरर आ रहा है हमारे पास। ओके। तो पर अब मेन 2 स्टेप हमेशा याद रखने हैं हमें, जब भी हम आर्डिनो से जब हम आर्डिनो से आर्डिनो आईडी को कनेक्ट करेंगे, टूल्स में, बोर्ड में, जब भी सबसे पहले हमने आर्डिनो कनेक्ट करना है, उसके बाद सबसे पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि यहाँ से अपना बोर्ड चूज करें, जो भी हम यूज कर रहे हैं। उनो कर रहे हैं, एटमेगा 328 कर रहे हैं, मेगा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम आर्डिनो यूज कर रहे हैं तो हम आर्डिनो सेलेक्ट कर लेंगे। ओके। सेकंड स्टेप हमारा होता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट क्या है, हमारे जैसे लैपटॉप में कई बार 2 या 3 पोर्ट्स होते हैं जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी को। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमारे कौन से पोर्ट पे आर्डिनो कनेक्टेड है। अगर मेरे वाले पे इस पे है तो मैं इस पे सिलेक्ट कर लूंगा, जिसका तुम्हारे पे तुम चेक कर लेना। उसके बाद हम गुड टू होते हैं, कोड लिखेंगे और अपलोड करेंगे, हमारा चल जाएगा। कोई रहेगा तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब इसमें एक मेन बात है ये वाली, ये है सीरियल मॉनिटर। इसका फंक्शन क्या होता है कि जब भी, ऐसे हमने भी देखा हम कि आर्डिनो से हम आउटपुट सेंड कर रहे हैं, आर्डिनो इनपुट ले रहा है, आर्डिनो आउटपुट सेंड कर रहा है। लेकिन अब मुझे चेक करना है कि आर्डिनो क्या इनपुट लिया या आर्डिनो क्या इनपुट सेंड कर रहा है। मुझे भी जज करना है, कोई मान लो कि जैसे चाहता हूँ फंक्शन ऐसे नहीं हो रहा, मुझे उसे डिबग करना है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लगे कि आर्डिनो क्या वैल्यू ली है और एक्सपेक्टेड सही लिया या नहीं ली। तो हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। ये टर्मिनल टाइप है बेसिकली, मॉनिटर कहते हैं सीरियल मॉनिटर। तो इसका फंक्शन क्या है, हम यहाँ पे डिबग के टाइम पे यूज कर सकते हैं कि क्या वैल्यू सेंड हो रही है या क्या वैल्यू कंट्रोलर सेंस कर रहा है, क्या वैल्यू इनपुट ले रहा है। तो फिलहाल इतना। उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 ब्लॉक्स हैं देखा जाए तो। एक है void setup, जहाँ पे हमें कोड लिखना है, एक है void loop। अब इसके नाम से क्लियर हो रहा है void setup का फंक्शन और void loop का फंक्शन। सेटअप मतलब क्या है, कुछ चीज हमें सेटअप करनी है, जो सिर्फ एक बार सेटअप करनी है हमें, जैसे हम एक बार सेटअप करिए। जैसे मान लो अभी हमने देखा था इधर कि बहुत सारी पिन है, डिजिटल पिन मान लो यूज करने, मुझे पता है हमें बहुत सारी पिन है। अब मैं किसी भी पिन से अगर कंपोनेंट कनेक्ट कर दूंगा मैं, तो मुझे कंट्रोलर को बताना पड़ेगा ना कि मैंने कौन सी पिन से कनेक्ट करा है। और वो सिर्फ एक ही बार बताना है, उसे बार बार बताने की जरूरत नहीं होती मुझे कि मैं इस पे से कंपोनेंट या ये वाला कंपोनेंट कनेक्ट करा है। तो हम इसको डालेंगे हम सेटअप के अंदर। और अब कोई चीज है मुझे चाहिए कंटिन्यूस चलती रहे चलती रहे चलती रहे, सब डाल देंगे लूप में। जैसे मान लो अब मैं ऑब्स्टेकल अवॉइड करने वाला सेंसर यूज कर रहा हूँ, तो क्या है, मैं हर बार चाहता हूँ कि बार बार चेक करता है। ये तो नहीं है कि एक बार चेक कर लिया ऑब्स्टेकल है या नहीं, उसके बाद दोबारा चेक ही ना करे।
जब तक वो मेरा प्रोग्राम चल रहा है वो कंटिन्यूस चीज चेक करता रहे तो उसे हम डाल देंगे लूप के अंदर। तो जो भी लूप के अंदर होगी वो चीज कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। और सेटअप में जब हम रीसेट करेंगे तो जब एक बार जब कोर्स रन कंपाइल होगा स्टार्ट होगा सिर्फ एक ही बार से वन टाइम रन होगा जो हम सेटअप में डालेंगे। तो यही कोड स्ट्रक्चर हमने बता दिया। दो स्ट्रक्चर होते हैं, void setup, void loop। सेटअप का फंक्शन वही जो सिंगल टाइम हमें रन करनी है कमांड, और लूप में जो चीज हमें कंटिन्यूअस टाइम चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस रन होती रहे। ओके, अब बेसिकली अब हमें कुछ बेसिक कमांड्स देखनी है जो कि हम प्रोग्राम करते टाइम यूज करेंगे। तो पहली कमांड हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पिन मोड से। पिन मोड अभी हमने देखा जैसे कि मान लो मैंने कोई भी पिन यूज करी, मान लो मैंने 10 पिन यूज करी। अब मुझे पहले कंट्रोल को ये बताना है कि मैं 10 नंबर पिन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात ये बतानी है कि मुझे जो कंपोनेंट लगा रहा हूँ मैं 10 नंबर पिन पर, वो इनपुट है या आउटपुट है, वो सेंसर है या एक्चुएटर है। तभी तो कंट्रोल डिसाइड करेगा जैसे मैं इनपुट लूँ या जैसे मैं कमांड दूं मैं। तो हम पिन मोड में पिन को, इसको पिन का जो मोड है वो डिफाइन करेंगे कि जो पिन नंबर है वो एज इनपुट काम कर रही है या एज आउटपुट काम कर रही है। तो जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ पिन मोड 11 आउटपुट, तो फिर बताया कि जो 11 पिन है, 11 पिन को मैंने एज आउटपुट सेट कर दिया, मतलब मैंने 11 नंबर पिन पे कोई ना कोई आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है, मे बी एलईडी हो सकती है, मे बी कोई भी मोटर है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आउटपुट डिवाइस या एलसीडी हो सकती है। मतलब हमने से बता दिया कि 11 नंबर पिन पे मेरी आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है। आता है डिजिटल राइट। डिजिटल राइट में क्या है बेसिकली, अब इसी में देखते हैं कि मान लो मैं 11 नंबर पिन पे कनेक्ट कर रखे है, एलईडी कनेक्ट कर रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि एलईडी मेरी ग्लो कर जाए, तो क्या है उसको मुझे बताना पड़ेगा ना, एलईडी को हाई वोल्टेज देनी पड़ेगी तभी ग्लो करेगी, और लो में वो जीरो मतलब वोल्टेज नहीं देगा। तो मैं इसमें एग्जांपल जैसे कह रहा हूँ डिजिटल राइट 11 हाई, तो 11 नंबर पिन पे जो भी कंपोनेंट कनेक्टेड है उसको हाई सेट कर दो, मतलब उसको तुम पावर दे दो। और अगर मुझे उसे बंद करना है, एलईडी ले लेते हैं, अगर मुझे जलाना है तो मैं उसे हाई दे दूंगा 11 नंबर पिन पे कनेक्ट करने के बाद। और अगर उसे मैंने ऑफ करना है तो उसे मैं लो कह दूंगा, क्योंकि डिजिटल पिन हाई और दो वैल्यूज में काम करता है, तो हम हाई और लो कुछ भी ले सकते हैं। ये तो हमारा हो गया राइट करने के लिए। मतलब हमें जब आउटपुट सेट करा हमने, कमांड जब कमांड हाई और लो दे रहे हैं आउटपुट डिवाइस को देंगे ना कि अब जलना है या बंद होना है, ऐसे कमांड दे रहे हैं। लेकिन अगर मेरा सेंसर है, मेरा मान लो कोई मेरा इनपुट डिवाइस है जिससे मुझे इनपुट लेनी है, तो उसे क्या करेंगे हम, डिजिटल रीड। सिंपल डिजिटल रीड क्या करेगा, डिजिटल रीड करेगा, या तो हाई करेगा या तो लो रीड करेगा। और उसे रीड कौन से पिन से करना है, कौन से पिन पे कनेक्ट करा हमने उसको, कौन से पिन को रीड करे कंट्रोलर, तो उसके लिए हम उसको पिन नंबर दे देंगे। यहाँ पे पिन लिखा हुआ है, तुम अगर 11 से करते हो 11, 10 से करते हो 10 से, जो भी तुम पिन यूज करोगे तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो, उसका पिन नंबर यहाँ पे दे देना बस। तो उसका क्या है, उसकी वैल्यू जो भी डिजिटल रीडर से रीड करके बता देगा कंट्रोलर की हाई है या लो है। तो उसके बाद आता है एनालॉग राइट और एनालॉग रीड। जैसे डिजिटल राइट था, उसका कमांड, उसका क्या काम था कि वो डिजिटली कमांड देता है कि हाई या लो। इसी एनालॉग राइट का क्या फंक्शन है, जो भी कंपोनेंट कनेक्टेड है, अब एनालॉग पिन यूज करेंगे पड़ेगा, अब एनालॉग कमांड यूज कर रहे हैं तो हम एनालॉग पिन यूज करेंगे A0 से A5 तक, ये 6 पिन से कोई भी पिन यूज कर सकते हैं। तो एनालॉग राइट करेंगे हम, जो भी पिन नंबर देना होगा, मान लो मुझे A0 यूज करना है, A1 यूज करना है, जो भी देना, मान लो मैं A1 कर रहा हूँ, तो एनालॉग राइट A1 100। अब इस 100 का क्या मतलब है, अब जैसे हमने भी डिस्कस किया एनालॉग की वैल्यूज क्या होती है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है, कुछ भी हो सकती है, पर उसकी एक रेंज होती है, रेंज के अंदर वेरी करती है वो। तो जो हमारा कंट्रोलर होता है ये 8 बिट होता है, 8 बिट कंट्रोलर होता है, तो मतलब इसके जो मैक्सिमम लिमिट हो सकती है वो 8 बिट डाटा ले सकता है। 8 बिट मतलब 2 रेज टू पावर 8 यानी 264 तक। तो उसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज 0 से लेकर 263 तक कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो इसने 100 दिया, हम 10, 20, 30, 50, 100 कुछ भी दे सकते हैं। तो इस पिन पर वो उतनी वैल्यू डाल देगा, उतनी परसेंट के हिसाब से वोल्टेज बेसिकली सेंड कर देगा। अब हमें एनालॉग रीड चाहिए, तो हम अगर हमें कोई सेंसर है एनालॉग वैल्यू दे रहा है, जैसे मान लो टेम्परेचर सेंसर है, वो हमें एनालॉग वैल्यूज दे रहा है कि मान लो अभी टेम्परेचर 2 डिग्री है, थोड़ा टाइम पर 2.5 हो गया, 2.8 हो गया, तो वो एनालॉग वैल्यूज दे रहा है, तो हम उसे एनालॉग रीड करेंगे। और सेंसर कौन सी पिन पर कनेक्टेड है वो हम उसका पिन नंबर यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद हमारी कमांड आती है डिले। अब डिले का क्या फंक्शन है कि मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक कमांड रन हो रही है और दूसरी कमांड रन ना हो, अभी मतलब मैं दूसरी कमांड से पहले कुछ टाइम चाहता हूँ,
तो उससे क्या होगा, डिले। डिले बेसिकली क्या करता है, गैप दे देता है बस वो, कंट्रोलर को अगली कमांड रन, जो कंपाइलर से अगली कमांड रन करने नहीं देगा। तो डिले की यूनिट्स होती है वो मिली सेकेंड्स होती है। अगर डिले का जो भी वैल्यूज देंगे वो मिली सेकेंड्स में होती है। इसमें दिया हुआ क्या आर्गुमेंट दिया हुआ 1000, तो ये 1000 मिली सेकेंड है, तो इसे हम 1 सेकेंड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी कमांड होगी उसे एटलीस्ट 1 सेकेंड तक वेट करना पड़ेगा। ओके, अब ये आती है हमारी सीरियल डॉट बिगिन। तो ये क्या है, 9600 बाउड रेट होता है। मतलब अब जो हमारा आर्डिनो है वो कम्युनिकेट कैसे कर रहा है, कितनी स्पीड पे कितने बिट्स पे कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो है 9600। तो उसे एक बार हम कंट्रोल को बता देते हैं, फिर भी उसे डिफॉल्ट 9600 होता है। बट अगर हम बता दें तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो हम ये कमांड यूज कर लेते हैं बताने के लिए। तो हमारी क्लास कमांड आ गई हैशटैग इंक्लूड। अब इंक्लूड का क्या मतलब होता है बेसिकली? करण, एक बार इसके बाद ना सारा फिर से ब्रीफली समझा देना। हाँ हाँ, मैं ये एग्जाम्पल में इनपुट बताता हूँ उसके आउटपुट बाद। का। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद आती है हमारी हैश कोड इंक्लूड। इंक्लूड बेसिकली क्या होता है, ये कमांड ये जब मान लो कोई कोड है, जैसे मान लो इसने कीपैड लिया हुआ है, कीपैड होता है ना, ऐसे 1 2 3 से हम इनपुट ले सकते हैं। अब उसका कोड बहुत लंबा सा होता है, तो अगर हमें अगर 4 बंदों की कीपैड यूज करना है, तो चारों बंदों को अलग अलग बार सेम कोड बार बार टाइप करना पड़ेगा। तो इंक्लूड से क्या हो सकता है, हमने एक कोड को एक पर्टिकुलर फाइल बना के रख लिया, एक लाइब्रेरी में डाल दिया। हेलो, तो ओके, तो हमें से पर्टिकुलर थोड़ी देर आप लैग कर गए थे बीच में 5 सेकंड के लिए, ठीक है? ओके ओके, मैं वापस कमांड शुरू करता हूँ, हैशटैग इंक्लूड शुरू कर लेता हूँ, इंक्लूड वाली। सो इंक्लूड कमांड बेसिकली क्या होता है, जब भी हमें तो अगर हमें सेम पीस ऑफ कोड, अगर मान लो कीपैड यूज कर रहा हूँ मान ले मैं, तो अगर 4 बंदे कीपैड यूज कर रहे हैं तो चारों बंदों को सेम ही कोड लिखना पड़ेगा बार बार, जो कि वेस्ट ऑफ टाइम है। तो हमने क्या किया, हमने जो जो कांस्टेंट कोड है, जो कि मतलब बेसिक कोड है, सबको लिखना ही पड़ेगा कीपैड यूज करने से पहले। हमने उसे एक फाइल में डालकर हमने उसे एक लाइब्रेरी में डाल दिया, सपोज करो। तो हमें क्या है, जब भी हमें या किसी को भी बंदे को वो सेम कोड चाहिए, तो वो उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेगा। तो उसे क्या है, जो बेसिक कोड था वो उसे लिखना नहीं पड़ेगा, वो उसके डायरेक्टली उस फाइल के अंदर आ गए, हम उसे डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो एज अ प्रोग्रामर है काफी टाइम सेव हो जाता है। एक बार तुम्हें आईडी में समझा देता हूँ कोड को। अच्छा, इसमें एक मेन बात आईडी में एक और अच्छी चीज है, अगर मान लो तुम्हें कोई बेसिक बेसिक कोड्स है ना, बहुत सिंपल कोड, अगर तुम लिखना नहीं चाहते, इसके अंदर ऑलरेडी एग्जांपल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे इसमें काफी सारे हैं, सेंसर्स के हैं, मोटर्स के हैं, एलसीडी कीपैड सब है। फिलहाल हम एक ब्लिंक से स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो तरुण। हम्म, तरुण, हाँ शुभ। एक बार ना वो इनपुट आउटपुट वाला सारा समझा दे, ये बाद में मैं समझा दूंगा लिंक वाला कमांड प्रॉपर। इसमें आएगी ना एक बारी। ओके ओके। हाँ, उसमें दिखा देता हूँ। ये एलईडी फेड का है, मतलब क्या है, हमें एलईडी ब्लिंक नहीं कर रही है, एलईडी ब्लिंक वाला हम पूरा देखेंगे। हम फेड का देख लेते हैं। मतलब क्या है, हमारी एलईडी जो है थोड़ी जले, फिर चलती रहे चलती रहे चलती रहे, मैक्सिमम ब्राइटनेस तक पहुंचे, उसके बाद फिर हम चाहते हैं वो डीम होती जाए हमारी। इसमें लूप का यूज हो रहा है, देखो एक मिनट, ये बेसिक सा कोड समझा देता हूँ। एक सेकंड।
नमन, तरुण लीव कर गया ना? हेलो? हाँ, शायद उसका कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होगी। ओके, हाँ, ज्वाइन कर गया। हेलो तरुण? Am I audible? Sorry हाँ, for the disturbance. Let me represent. My screen is visible? Yes, it's visible. Okay, thanks. So basically अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम एक इनबिल्ट एलईडी जो है ना, मैं की चीज बताऊं यहाँ पे। हाँ? अगर किसी को वर्ड्स छोटे दिख रहे हैं तो आप पिंच करके ना जूम कर सकते हो, जैसे नॉर्मल करते हैं ना हम, तो जूम हो जाता है इसमें। तो ओके, तो इसमें हमारा क्या है, बेसिकली अगर हम सब उड़ा दें जो हमें नहीं चाहिए फिलहाल के लिए, तो ओके, तो हमारा पहला कमांड देख सकते हो क्या है, सेटअप के अंदर पिन मोड डिफाइन कर रहे हैं हम। पिन मोड में क्या है, हमें एलईडी बता दी, हम एलईडी यूज करने वाले हैं, और वो हमारी एलईडी क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें एलईडी हम एज अ उसे कमांड देंगे हम, और एलईडी को हमने यहाँ पे पिन बता दिया, हम पिन नंबर 13 पे यूज करने वाले हैं। तो हमने बता दी जो 13 नंबर पिन पे जो एलईडी है वो हम एज अ आउटपुट यूज करने वाले हैं, जो भी हमने कमांड देखी थी। ये देखो ये है ना पिन मोड, ये वाली कमांड हमने एज इट इज यहाँ यूज कर ली है। उसके बाद हमारा लूप वाला सेक्शन आता है। लूप वाले में हमने से पहले क्या करा कि हम कहते हैं कि हमारी जो एलईडी है वो हाई हो जाए, मतलब जो एलईडी है वो जल जाए। उसके बाद हमने क्या डिले दिया, डिले मतलब 1 सेकंड के लिए वो एलईडी जलती रहे, मतलब पहले जली थी उसके बाद 1 सेकंड डिले आ गया, तो उसमें कुछ कमांड नहीं करा, सिर्फ जलती थी, पिछली कमांड रन रही ऑन गोइंग रही। उसके बाद क्या हुआ, एलईडी हो गई लो, लो मतलब क्या हो गया, वो एलईडी बंद हो गई। फिर हमने डिले दिया, वो एलईडी अब भी बंद ही रही 1 सेकंड तक, क्योंकि कमांड तो रन हो ही नहीं सकती ना। उसके बाद वापस लूप है तो वापस ऊपर जाएगा, फिर हाई, फिर डिले, फिर लो, फिर डिले, फिर हाई। इस तरह हमारी एलईडी क्या करेगा, ब्लिंक करेगी। ठीक है, कोई डाउट किसी को अभी पूछना चाहे? एक बार ये वाली जो इनपुट आउटपुट वाली चीज है ना, ये फिर से समझा दे, फिर उसके बाद मैं इनको लिंक करके ऐड दिखा दूंगा। जैसे तरुण भैया एक डाउट था किसी का कि डिजिटल रीड और एनालॉग रीड में क्या डिफरेंस है, एक डाउट था। ओके, तो डिजिटल रीड और एनालॉग रीड में बेसिक डिफरेंस क्या है कि मान लो कोई सेंसर है जो डिजिटल पे काम करता है, मतलब ऑब्स्टेकल है, मान लो सपोज ऑब्स्टेकल आ गए, ऑब्स्टेकल आगे है या नहीं है, या तो होगा या तो नहीं होगा, दो वैल्यू होते हैं 0 या 1, तो वहां पे ऐसे हम डिजिटल रीड करेंगे सेंसर को, कि हमें बताएगा कि ये 0 है या 1 है, आगे ऑब्स्टेकल है या नहीं है। लेकिन अब सेंसर के सामने लेकर हम टेम्परेचर सेंसर ले, सेंसर हमें क्या है वो कॉन्टिन्यूअस टेम्परेचर बताता रहेगा, अभी 23 डिग्री है, अभी 22 हो गया, अभी 20 डिग्री हो गया। टेम्परेचर क्या वेरी कर सकता है, 20.1 से 20.2 से कोई भी एनालॉग वैल्यू ले सकता है, तो हम इसलिए उसे एनालॉग रीड यूज करेंगे। और बाकी जो पिन मोड है उसमें दो टाइप की हो सकती है, पिन मोड 11 इनपुट भी हो सकता है, यहाँ पे आउटपुट भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट कोई भी हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हमें डिस्लाइट हाई या लो करना है तो उस हिसाब से हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अगर हमें इसको हाई करना है तो हाई, अगर लो करना है तो लो, जैसे हमने आईडी में देखा था। और किसी को कोई डाउट हो भी? Katra, Shumatra, from here you can continue. Okay, thank you. Let them show. Is my voice audible? अपनी स्क्रीन शेयरिंग मत करना। मेरी आवाज आ रही है ना? Yeah, you're audible. Okay, nice. So, is my screen visible? Yes, Hello. your screen visible. Okay, so hello everyone. I'm Shivam Ratra. I'm also the Vice President of Jugaad Club. So, आज हम अभी सर्किट शुरू करते हैं from the very basic part.
लाइक आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई कोडिंग वगैरह करता है तो उसमें सबसे बेसिक पार्ट होता है हेलो वर्ल्ड। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बेसिक होता है एलईडी ब्लिंक। तो ये एक टिंकरकैड सॉफ्टवेयर है, तो इसके थ्रू मैं आपको सिमुलेट करके दिखाऊंगा एंड बाकी इसका हम टिंकरकैड का ब्रीफली आगे बताते रहेंगे। तो ये सर्किट आप देख सकते हो कि ये जो सर्किट है इसमें आर्डिनो उनो है हमारा, एंड दिस इज आवर एलईडी एंड इज आवर रेजिस्टेंस। सो इसमें क्या करते हैं, हमने अपने कैथोड को सीधा ग्राउंड पे कनेक्ट किया एंड एनोड को सिग्नल दिया व्हिच इज टू डिजिटल पिन। हम वी यूज दिस डिजिटल पिन बिकॉज हमने इसको सिग्नल देना है इन फॉर्म ऑफ 1 and 0 कि एलईडी जले एंड बंद करे, सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड डिजिटल पिन। सो थोड़ा इसके कोड पार्ट पे आपको समझा देता हूँ। तो like Tarun explained, we have two parts of the code. One is setup and one is loop. So like you can see that I've connected the LED in digital pin number 12. So I have defined number 12 as output, and here I have given digital light 12, which is high, and high means that LED will be turned on, and here low means it will be turned off. और इसमें 1000 का मतलब होता है 1 सेकेंड। सो एक बार आपको सिमुलेशन दिखा देता हूँ। सी सिमुलेशन दिख रही है ना मेरी तरुण? हेलो Yes, तरुण? Shubham. Yes, Shubham. Yes, Shubham. Okay, We okay. can see. ऐसी simulation. तो ये जो है टिंकरकैड, ये ऑनलाइन सिमुलेटर है। लाइक जो अभी तरुण ने दिखाया है आर्डिनो आईडी, उसके लिए तो आपको हार्डवेयर चाहिए होगा। तो टिंकरकैड में सब ऑनलाइन हो जाता है, इट्स सिमिलर। तो इसके बारे में कि इसका सर्किट कैसे क्रिएट करते हैं एंड ऑल, ये हम आपको कल अच्छे से कराएंगे। एंड फॉर दोस्त जिसने अभी भी अकाउंट नहीं बनाया टिंकरकैड पे, मैं सजेस्ट करूंगा उनको कि वो भी टिंकरकैड अकाउंट बना ले, ताकि कल जैसे हम आपको एक एक वायरिंग से बताएंगे तो आप लोग भी साथ में करोगे, तो आपको तब सीखने को ज्यादा मिलेगा, और कोई डाउट वगैरह होगा तो उसी टाइम पूछ सकते हो आप हमसे। तो एक बार मैं अपने हार्डवेयर में भी, मेरे पास एक ऊनो है, उस पर भी दिखा देता हूँ। तो जैसे तरुण आईडी दिख रहा है आर्डिनो का? Not yet. Yeah, now it's visible. Okay. So as you all know कि इसमें पहले से ही प्री डिफाइंड एग्जांपल्स होते हैं, तो मैं एक एलईडी ब्लिंक का ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी मैं अपने कैमरे से दिखा देता हूँ आपको आर्डिनो में अपलोड करके। तो राइट नाउ you can't see, but I have connected the Arduino Uno to my laptop. So the first step is to go to tools and then select your board from here. यहाँ पे तुम देख सकते हो काफी तरह के आपके पास बोर्ड्स है। तो यहाँ पे मैंने Uno सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे which is COM3, which is the serial port of to which is our Arduino is connected to our laptop. और ध्यान रखना, जय ये तुमने गलत चूज किया बोर्ड या पोर्ट भी तुम्हारा सिलेक्टेड ना हो तो हमारा कोड सक्सेसफुली अपलोड नहीं होएगा। तो उसके बाद तुम आइदर वेरीफाई कर सकते हो या सीधा अपलोड कर सकते हो। जब तुम अपलोड करोगे तो वेरीफाई भी साथ में हो जाता है। तो इसको जब मैं ऐसे अपलोड करूंगा, it will be shown done uploading. So now I'll show. Tarun, is the Uno visible? Yeah, it's visible. So you guys can see that here I've selected in the code pin 13, and by default the Arduino has a built-in LED which is turning on and off. And the gap is 1 second. As we have
even in code. Okay. So, like you guys don't, I'm sure that you guys don't have Arduino Uno right now. So we'll be teaching you the rest part of the coding and all through Tinkercad, which is a free, like our Arduino ID. So I'll suggest you all to make an account. And so Naman, I think we can start with the doubt session for today's. Hello Naman. Tarun, Anyone having any type of doubt I can ask. We can see. We are looking in chat section. चैतन्य चाहे उनको एक एक करके अनम्यूट कर देना. बच्चे कई पूछ रहे हैं हाउ मच डज आर्डिनो कॉस्ट, तो वो अलग. Okay, so the Arduino Uno cost about approx 360 rupees. Like if you want a wire, because it has a separate wire, because the USB type is I think so A, so the wire also costs around 50 rupees. So it will cost around total 420 to 410 rupees. Any other type doubt? अगर एलईडी को पावर ऑफ करना हो तो उसके लिए कोई कमांड. यस, तो एलईडी को अगर ऑफ करना हो तो उसके लिए हम डिजिटल राइट लो करेंगे. लाइक डिजिटल राइट हाई विल बी टू टर्न ऑन द एलईडी एंड लो विल बी टू टर्न ऑफ. बाकी कल हम एक और एलईडी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें आप लोग भी खुद अपने टिंकरकैड में हमारे साथ बनाओगे. हाँ जी, तो उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी. मतलब आप सर्किट भी खुद बनाओगे हमारे साथ एंड कोड भी लिखोगे. सो उससे आपको टिंकरकैड का भी आ जाएगा कि कैसे चलाते हैं. चैतन्य और कोई क्वेश्चन है? बाकी डिजिटल राइट के ऊपर है. डिजिटल राइट एक कमांड है, प्रीसेट जो इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं. सॉरी, बेसिकली डिजिटल राइट कमांड है जो कंट्रोलर दे रहा है, जो भी उसका जो आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड है उसके लिए कि उसे हाई करना है या लो करना है. डिजिटली जो कंट्रोलर उसका जो एक्चुएटर या जो भी कंपोनेंट कनेक्टेड है उस पिन पर वो कमांड देगा कि तुम्हें हाई करना है या लो करना है. ओके, एक ऋषभ वर्मा का क्वेश्चन था कि सर एक्सप्लेन एनालॉग रीड एंड डिजिटल रीड. ओके, सो ऋषभ बात यह है कि जो एनालॉग रीड है एंड डिजिटल रीड, इनका काम सेम है कि फ्रॉम सेंसर या जो भी जिससे हमने कनेक्ट किया उससे वैल्यूज रीड करें. बट इफ यू वांट टू रीड digitally, like you have only the values are coming in zeros and one, then you will do digital read. If your values will like vary from 0 to 255 and all, then you will have to use analog read. This is the main difference between analog and digital, but their functions is the same to read the values which they are getting from any other source or sensor and all. Okay, किसी का डाउट है which language? Basically Arduino have its own assembly language, but it's very similar to C or C++. So if you have idea about C or C++, then the assembly language of Arduino won't be that difficult or don't be that, मतलब तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आएगी. तुम्हें C भी आती है बेसिक, तो बस उसके वजह से अलग अपनी सेकंड लैंग्वेज होती है. एक अभी घर का डाउट था कि हमें किसी ऐप में कोड लिखना है या फिर विंडोज पे या फिर ऑनलाइन. no, wait. The Arduino ID, you have to download the software, and it's not a very big software, it's quite small. ठीक है, तो जब तुम डाउनलोड करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिलेक्ट कि तुम्हारा विंडोज है या क्या या iOS वगैरह जिस पे भी हो. उसके बाद ऐसे थोड़ा डोनेशन का पूछता है इफ यू वांट टू डोनेट. बाकी वो तुम्हारी मर्जी है, तुमने जीरो नहीं करना डोनेट तो यू हैव दैट ऑप्शन आल्सो. तो Arduino ID के लिए तो वही है. और टिंकरकैड एक हमारा ऑनलाइन सिमुलेटर है, पूरा वेबसाइट पे है. यू डोंट हैव टू डाउनलोड एनीथिंग. तुम फोन पे भी यूज कर सकते हो टिंकरकैड, लैपटॉप पे भी, चाहे तुम्हारा लैपटॉप 10 साल पुराना हो
या 5 साल पुराना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन। ओके सर, हमें तो ओके, इफ यू वांट टू रन द लूप ओनली वंस, then one option is that you can run that thing in the setup. Like you want to turn the LED on once and off, then you can also do it in the setup, because it will only be run once. So we can do all. Okay. चैतन्य, और कोई नया क्वेश्चन दिख रहा है? Yeah, we can send. Just a second. Okay. We'll be also sharing the download link on the WhatsApp group and on the chat also. Sir, एक बार वो क्लियर कर देते हैं कई लोग कि आर्डिनो के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर बोर्ड से आप कुछ भी बना सकते हो और उसको जो रन करना है वाया कोड वो हम आर्डिनो आईडीई में करते हैं। और अभी क्योंकि हम फिजिकली मिल नहीं सकते इसलिए टिंकरकैड एक साइट है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि असल में आर्डिनो क्या करता। अगर हम फिजिकल वायर से कनेक्शन करेंगे तो जो टिंकरकैड की वेबसाइट पे दिख रहा है वही असली में भी होगा। like if you जो वर्चुअल आर्डिनो है वो टिंकरकैड पे हम देख सकते हैं वर्चुअली। हाँ जी, like तुम्हें कुछ नया सेंसर वगैरह ट्राई करना है, तो यू आर नॉट श्योर कि whether it will work the way you want, then you can try on Tinkercad. Then later on, if you are happy with it, buy it from a shop or from any store. And we make the board and customize it also. हाँ, उसके लिए अगर तुम्हें पीसीबी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अगर बाद में तुम चाहो तो खुद का बोर्ड भी कस्टमाइज कर सकता है, सर्च कुछ नहीं है। For contribution part, like you can use like GitHub and all to contribute for free. ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होते हैं, उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। But on their website, I'm not sure why they're showing it's paid. चैतन्य, और कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा? नहीं, अभी के लिए तो नहीं। Later on we would, अच्छा, एक नमन आनंद ने पूछा है कि can we customize it? Okay, Arduino को you can customize it, but it's not very easy क्योंकि उसके जो components वगैरह है ना थोड़े delicate होते हैं। So if you are confident in doing it, then go ahead. But it's not that easy. सर, इसके नोट्स, हाँ जी, इसके नोट्स एक तो आपको पीपीटी भी शेयर कर देंगे, and the recording of the video will also be shared shortly after tomorrow in 1 or 2 days. And if you have any doubt, you can message us anytime. Okay, चलो फिर चैतन्य, I think will be same 1:30 to 2:30. हाँ, तो tomorrow's session will be quite fun क्योंकि हम साथ में सारे टिंकरकैड वगैरह चलाएंगे और आप लोग भी बनाओगे। तो for some book for learning language, like book I will not suggest much क्योंकि nowadays you get everything on the YouTube and website and all. So I don't think so going for a book is recommendable because it will take quite a lot of time to learn from a book also. And बात ये होती है, जैसे तुम्हें बस थोड़े बेसिक्स पता होना चाहिए, बाकी जब तुम्हें जो जो चीज की नेसेसिटी पड़ेगी कि हाँ मैंने ये वाला सेंसर करना है, तो उसी टाइम नेट पे देखो अबाउट द सेंसर, इसका कोड थोड़ा स्टडी करो एंड यूज कर लो। ये काफी सारे सेंसर होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि याद होता है कुछ ऐसे सेंसर्स के बारे में और उसका कोड का।
So I'll not recommend any type of book and all. Baki, we'll share some YouTube links and all from where you can learn about Arduino more. बाकी सेंसर्स के बारे में हम कल भी बताएंगे आपको कितने टाइप्स के सेंसर होंगे, मेन सेंसर्स, उसको उसके अलावा भी और काफी सारे सेंसर होंगे, वो कल आपको अच्छे से बता देंगे। वो डिपेंड भी करेगा आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का है। जिस टाइप का प्रोजेक्ट होगा उस टाइप के सेंसर्स आप यूज करोगे उस प्रोजेक्ट में। वो सारा कल हो जाएगा एक बार डिस्कस। चलो ठीक है फिर नमन, मेरे ख्याल से खत्म करते हैं अब, है ना? किसी को कोई एक ये है आर्डिनो साज, हाँ ठीक है, तो हम आज का खत्म करते हैं हम। एंड आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा एंड यू हैव लर्न समथिंग एंड we'll hope to see you tomorrow. कल की टाइमिंग सेम रहेंगे एंड मीटिंग लिंक विल बी शेयर्ड विद यू इसी टाइम पे। So thank you so much for attending today's lecture and कल please Tinkercad का अकाउंट बना लेना साथ साथ because we will be working there as well. तो Tinkercad का अकाउंट बना लेना and if anyone is having problem तो you can message any one of us. किसी को भी मैसेज कर लेना, पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है? We are always ready to help. So thank you so much and with that I'd like to end this meeting. Thank you to our speakers Tarun and Shubham Ratra and thank you Chaitanya for organizing this meeting.